اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اور جیمنائی کے ساتھ ہمارے کچھ پروگرام چل رہے تھے۔ ایک ہم نے سورہ آل عمران کا سلسلہ شروع کیا تھا، بلکہ صورتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس پہ بات ہو رہی تھی سورہ آل عمران کے جو موضوعات ہیں، اور چیٹ جی پی ٹی نے بتایا کہ 7 موضوعات ایسے ہیں اہم جن کو تقسیم کیا جا سکتا ہے سورہ آل عمران میں، اور وہ جو 7 موضوعات تھے اس میں اللہ کی وحدانیت تھی، رسالت اور انبیاء کا ذکر تھا، اس کے علاوہ اہل کتاب سے مکالمہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ اچھا، یہاں تک ہم اس سے بات کر چکے ہیں۔ اس سے آگے جو تھا وہ 5واں جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تھا ایمان، صبر اور تقوی کی تلقین۔ تو آج جو ہے اس سے آگے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی پچھلا کھولتا ہوں کہ کہاں ہم نے بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How can I help you today? آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ہمارا سلسلہ چل رہا سورہ آل عمران پہ ہم بات کر رہے تھے، جس پہ ہم نے 3-4 موضوعات پہ بات کی تھی، اور جو اس کا 5واں موضوع تھا وہ تھا ایمان، صبر اور تقوی کی تلقین، جس میں کہا تھا کہ بھئی ایمان والوں کو صبر، تقوی، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ تو آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو ایک ایک کر کے ایمان، صبر، تقوی، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو شروع کریں، کہاں سے شروع کریں گے؟ کیا بتائیں گے آج آپ ہمیں؟ یہ بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ سورہ آل عمران میں ایمان، صبر، تقوی، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین بہت ضروری ہے۔ ہم ان پہلوؤں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1. ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین اور ان کے حکومت کو ماننا۔ آج ہم اس پہلو پر بات کریں گے کہ ایمان کا اصلی مطلب کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ 2. صبر، یعنی صبر اور تحمل۔ سورہ آل عمران میں صبر کی بہت تعریف ہوئی ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ صبر کی اہمیت کیا ہے اور مشکلات میں کس طرح سے صبر کرنا چاہیے۔ 3. تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف اور اس کی حکومت سے بچنے کی کوشش۔ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ تقوی کیسے انسان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ 4. شکر، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا۔ ہم اس پہلو پر ڈسکس کریں گے کہ شکر کیسے انسان کو ایک پازیٹیو اور تھینکفل انسان بناتا ہے۔ 5. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل یعنی پورا بھروسہ رکھنا۔ ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے اعمال میں اللہ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایمان سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، اور یہاں سورہ آل عمران میں ایمان کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے؟ بالکل، چلیے ایمان سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا اصل مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین اور ان کے سب حکومت کو ماننا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی توحید، یکتا پر یقین، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور آخرت کے دن پر یقین۔ سورہ آل عمران میں ایمان کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے؟ سورہ آل عمران میں ایمان کی بہت تعریف ہوئی ہے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 1. ایمان کا اصل اصول، اللہ پر پورا یقین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی ہر حکومت کو ماننے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کریں۔ 2. ایمان اور صبر کا تعلق۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مشکلات اور امتحانات میں صبر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں صبر کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ 3. تقوی اور ایمان۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر اور اس کے حکومت سے بچنے کی کوشش۔ سورہ آل عمران میں تقوی کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان میں تقوی بھی ہوتا ہے۔ 4. ایمان اور شکر۔ ایمان والے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں شکر کو ایمان کے ایک اہم حصہ کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ ختمہ۔ سورہ آل عمران میں ایمان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ایمان صرف دل کا ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے جو ہر پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس ٹاپک پر اور بھی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کس پہلو پر زیادہ معلومات چاہیے؟ نہیں، ہم مختصر ہی کرتے ہیں، صبر پہ بات کرتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی صحابی تھے جو صبر کی دعا مانگ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مصیبت مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کرو گے نا۔
बिल्कुल, सब्र एक बहुत अहम पहलू है इस्लाम में। सब्र का असल मतलब है मुश्किलात और इम्तहानात में तहम्मुल और बर्दाश्त करना। यह सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक अमल है जो इंसान की रूह को मजबूत करता है। सब्र क्या है? सब्र का असल मतलब है तहम्मुल और बर्दाश्त, मुश्किलात और तकलीफों को बर्दाश्त करना और उनका सामना करना। सब्र का अमल हर हालत में अल्लाह की रजा को कबूल करना और उस पर यकीन रखना, नफसानियत पर कबू पाना। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर कबू पाता है। सूरा आले इमरान में सब्र के हवाले से क्या बात की गई है? सूरा आले इमरान में सब्र को बहुत अहमियत दी गई है और इसे ईमान के साथ जोड़ा गया है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं जो सूरा आले इमरान से समझ आते हैं। 1. सब्र का ताल्लुक ईमान से। सूरा आले इमरान में ईमान वालों को सब्र की तलकीन की गई है। जब मुसीबत आती है तो ईमान वालों को सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 2. सब्र का असर। सब्र करने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। सब्र से इंसान अपने इम्तहानात का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। 3. सब्र और अल्लाह का कसूर। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे कमजोरी से निकलता है। खत्मा। सब्र एक अहम पहलू है जो इंसान को इम्तहानात में मजबूत बनाता है। सूरा आले इमरान में सब्र की अहमियत को समझाया गया है और यह हमें यह सिखाता है कि हर हालत में सब्र करना चाहिए। तकवा पे बात करते हैं कि तकवा क्या है और एक शख्स जो है वो मुत्तकी कैसे बन सकता है। बिल्कुल, चलिए तकवा के बारे में बात करते हैं। तकवा एक ऐसी दौलत है कि अल्लाह का खौफ और उसके हुकूमत से बचने की कोशिश। तकवा एक ऐसी हिफाजत है जो इंसान को बुराइयों से बचाकर नेक अमल करने में मदद देती है। तकवा का मतलब है अल्लाह की रजा को हासिल करना और उसके हुकूमत से बचने की कोशिश करना। मुत्तकी कैसे बन सकता है? 1. अल्लाह का खौफ। मुत्तकी वो इंसान होता है जो अल्लाह से डर और उसकी हुकूमत से बचने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि वो इंसान हर अमल में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखता है। 2. बुराइयों से बचना। मुत्तकी इंसान बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। वो हर ऐसे काम से दूर रहता है जो अल्लाह की नफरत का सबब बन सकता है। 3. नेकी की तरफ रग़बत। मुत्तकी इंसान नेक अमल करने में सबकत करता है। वो हमेशा अच्छे कामों में आगे रहता है और बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। 4. अल्लाह की हकामत को मानना। मुत्तकी इंसान अल्लाह के हुकूमत को मानता है और उसके हुकूमत के मुताबिक अपने अमल को ढालता है। खत्मा। तकवा एक अहम सिफत है जो इंसान को अल्लाह के नजदीक ले जाता है। मुत्तकी बनने के लिए इंसान को अल्लाह से डर और उसकी हुकूमत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं शुक्र पे बात करना चाहता हूँ। बेशुमार जगहों पे कुरान पाक में आया है कि शुक्रगुजार बंदे बनो, शुक्रगुजार बंदे बनो, और जो शुक्रगुजार होते हैं मैं उन्हें और देता हूँ। तो ये शुक्र, पहले तो ये शुक्र क्या है और कैसे एक बंदा शुक्रगुजार, शुक्र कैसे शुक्र करे? बिल्कुल, शुक्र एक बहुत ही अहम और कीमत की अमल है इस्लाम में। शुक्र क्या है? शुक्र का असल मतलब है अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा करना। जब इंसान अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों और रहमत को समझता है और उनका शुक्राना अदा करता है तो वो शुक्रगुजारी कहलाती है। शुक्र का मतलब है अल्लाह की दी हुई नेमतों को समझना और उनका शुक्राना अदा करना। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब है 1. ज़बान से शुक्र, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना और उनका शुक्राना अदा करना। 2. दिल से शुक्र, अल्लाह की नेमतों का शुक्राना दिल से अदा करना और उनका शुक्र महसूस करना। 3. अमाल से शुक्र, अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करना और उनका शुक्राना अदा करना। शुक्रगुजारी कैसे करें? 1. अल्लाह का जिक्र, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्राना अदा करें। 2. नेकी और इबादत, अल्लाह की नेमतों का शुक्राना नेक अमल और इबादत से अदा करें। 3. नेमतों का सही इस्तेमाल, अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। 4. दस्तयाबी, अल्लाह की नेमतों को देखकर उसकी शुक्रगुजारी करें और हर हालात में उसका शुक्राना अदा करें। खत्मा। शुक्र एक अहम अमल है जो इंसान को अल्लाह के नजदीक ले जाता है। शुक्र करने से इंसान की जिंदगी में बरकत होती है और अल्लाह की रहमत और रहमत बढ़ती है। अच्छा, आमतौर पे होता है कि लोग गिला करने वाले होते हैं। हम लोग भी सारा दिन यही करते रहते हैं, गिला करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, और शुक्र कम करते हैं। कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम गिला करने वाले कम हो जाएं और शुक्र करने वाले ज्यादा हो जाएं? बिल्कुल, शुक्रगुजारी को अपनाना और गिला करने से बचना एक जरूरी अमल है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपकी मदद करेंगे। 1. शुक्रगुजारी की आदत डालना। रोजाना शुक्र का वक्त निकालें। हर दिन कुछ वक्त निकालकर अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्राना अदा करें। शुक्र की लिस्ट बनाएं। हर दिन अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसकी लिस्ट बनाएं और उनका शुक्राना अदा करें। 2. गिला करने की आदत से बचना। पॉजिटिव सोच रखें। हर मुसीबत या चैलेंज को एक सीख और मौका समझे।
शुक्र की तरफ तवज्जो दें। जब आप गिला करने वाले हों तो तुरंत अपने दिमाग को शुक्र की तरफ ले जाएं और सोचने की कोशिश करें कि अल्लाह ने आपको क्या क्या नेमत दी है। 3. ग्रैटिट्यूड का अमल। दुआस में शुक्र शामिल करें। अपनी दुआस में अल्लाह का शुक्राना जरूर शामिल करें। हुनर और वक्त का शुक्राना। जो भी हुनर और वक्त अल्लाह ने आपको दिया है उसका सही इस्तेमाल करें और उनका शुक्राना अदा करें। 4. कम्युनिटी और फैमिली के साथ शुक्रगुजारी कराएं। दूसरों का शुक्र, अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करें और उनका शुक्राना अदा करें। अच्छी आदत डालें। आपके आसपास के लोग भी शुक्रगुजारी को अपनाएं, इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। खत्मा। शुक्रगुजारी को अपनाना और गिला करने से बचना इंसान की जिंदगी में सुकून और बरकत लाता है। अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा करना हमारी रूह को सुकून देता है। अच्छा, एक बात तो आखिर में बता दें, वो है अल्लाह पर भरोसा करना। ये जो हम ले रहे हैं तो आज की तारीख में यहाँ तक हो जाए, अल्लाह पर भरोसा करना, इससे क्या मुराद है? जी बिल्कुल, सूरा आले इमरान का एक बहुत अहम मौजू अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल है। ये सूरत मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि असल कामयाबी, मदद और हिफाजत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। आइए तफसील से देखते हैं कि सूरह आले इमरान में अल्लाह पर भरोसे का तसव्वुर कैसे बयान किया गया है। तवक्कुल का मफहूम। तवक्कुल का मतलब है अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद नताइज के लिए अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना। यानी इंसान अपनी मेहनत करता है, मंसूबा बनाता है, लेकिन दिल से ये मानता है कि इंजाम सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा। दी सूरह आल इमरान में तवक्कुल की तलकीन। बस आप उन्हें माफ कर दें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और काम में उनसे मशवरा करें। फिर जब आप फैसला कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयत हमें बताती है कि इंसान मशूरा करे, फैसला करे और फिर इंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्दुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे। बस मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। यह वाज़ेह पैगाम है कि फतह व शिकस्त का फैसला मैदान में नहीं, अल्लाह के हाथ में होता है। ग़ज़वा उहद और तवक्कुल का सबक। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को नुकसान हुआ, मगर कुरान ने सिखाया कि अपनी कोताही पर नादिम हो जाओ, आइंदा एहतियात करो, मगर मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह के भरोसे वाले कभी नाकाम नहीं होते। अमली जिंदगी में सबक। सूरा आल इमरान हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा ना करें, दुआ और तवक्कुल को साथ रखें, अल्लाह की रज़ा को हर हालत में कबूल करें और यह यकीन रखें कि अगर अल्लाह साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं दे सकती। खुलासा। तवक्कुल वो रूहानी ताकत है जो मोमिन को हालात में हिलने नहीं देती। सूरह आल इमरान में यह पैगाम बार बार मिलता है कि ईमान के बाद अल्लाह पर भरोसा वो ज़्यादा राह है जो हर आजमाइश में कामयाब कर देता है। बहुत शुक्रिया जी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आसानियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये आजकल चैट जीपीटी ने क्या किया है कि उसने कुछ सूरत हाल को बदला है। अब वो जो जवाब होता है उसको पहले वो रोमन में लिखता है और रोमन में लिखने के बाद उर्दू में बोलता है, क्योंकि डायरेक्ट उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती थी। तो उन्होंने शायद इसका जो उसके ट्रेनर होंगे उन्होंने ये निकाला तरीका कि शायद ये इससे बेहतर, अच्छा उससे कुछ लफ्ज़ तो बेहतर हो गए, अल्फ़ाबेट ठीक हो गए, फिगर ठीक हो गए, कुछ और लफ्ज़ भी ठीक बोलने लगा। लेकिन बाद जहाँ एक हम बड़ा बोलते हैं तो वो डबल ए होना चाहिए तो नहीं है, डबल ओ कर देता है, तो वो फिर उसी तरह से अपने लफ्ज़ बना लेता है। उम्मीद ये है कि बकदर ठीक होता चला जाएगा। कुछ और लफ्ज़ ऐसे जोड़ लेता है, मुझे नहीं उसको समझ में नहीं आती कि ये उर्दू में क्या था और इसका मैं रोमन क्या बनाऊँ और फिर दोबारा उसको क्या बोलूँ। तो बहरहाल इस चीज़ को सामने रखते हुए ही
ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور میں دوبارہ 2-3 مرتبہ اپنے ولاگ جو اس کو سنتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ نشر ہو یا ایسا لفظ نہ چلا جائے جو کہ مناسب نہ ہو، کیونکہ وہ تو مشین ہے نا، اس کو تو اس سے کوئی تمیز نہیں کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، لیکن میں اپنے تئیں اس کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کے بھی علم میں کوئی بات آئے تو میں اس کو بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں کہ اس کو وہاں سے میوٹ کر دیا جائے یا اس کو نکال دیا جائے۔ تو بہت شکریہ جی، آج کی جو گفتگو رہی میرے لیے تو کافی دلچسپ تھی، امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا۔ آئندہ اس سے آگے ہی چلیں گے، اور اگر ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو مہربانی کیجیے اس کو سبسکرائب کر لیجیے کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں، میرے لیے آپ کی یہی مدد ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔